زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ سرسبز اور لہلہاتے کھیت جہاں آنکھوں کو فرحت دیتے ہیں، وہیں ان میں موجود جنگلی حیات اور پرندوں کی دلکش آوازیں انسان کے کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ چرند پرند بلکہ ہر چیز اللہ پاک کی پاکی کا بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے اور اس کی پاکی کا بیان کر رہی ہے۔ زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بھی زمین ہے اور ساتھ میں بھی کیا ہے؟ زمینیں ہی ہیں، دونوں زمین کا ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ دیکھیں یہاں بھی پانی ہے لیکن کچھ نظر آپ کو فصل نہیں آ رہی۔ یہ جو گھاس پھوس ہے یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اور بالکل ساتھ میں آپ دیکھیں تو وہ آپ کو فصل کیا ہے؟ چاول کی فصل ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ فرمان ہے کہ رب کریم نے جو فرمایا نا کہ زمین کے کچھ قطعے ہیں پاس پاس ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، کچھ بنجر ہیں، کچھ ویران ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے نا، یہ کلر زمین کہلاتی ہے۔ یہ یعنی اس میں نمکیات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ کوئی فصل نہیں ہو سکتی۔ کچھ مخصوص فصلیں ہیں جو اس زمین میں بھی ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کی ایک ڈیٹیل ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی قدرت کا نظارہ ہی ہے، اللہ جہاں سے چاہے گا وہیں سے اناج کو پیدا فرمائے گا۔ بالکل۔ اور اسی طرح روڈ پر بھی ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ایک طرف فصل ہے، دوسری طرف فصل نہیں۔ پانی کا بھی ہے، پانی کا ایشو بھی ہے، دوسری طرف پانی نہیں ہے، پانی کا ایشو بھی اپنی جگہ پر ہے۔ آپ دیکھیں جنگلی حیات، وہ دیکھیں وہ بگلا نظر آ رہا ہے آپ کو، جی جی وائٹ وائٹ ہے، جی جی، اس کو ہنس بھی کہتے ہیں۔ زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی۔ ادھر تو کیا ہے؟ کچھ جگہ پر فصل ہے، کچھ پر فصل ہے ہی نہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیں یہ ٹوٹل جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان اللہ۔ سورج بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، لیکن جہاں سے اللہ چاہے گا وہاں سے سبزہ پیدا ہوگا، وہاں سے فصل پیدا ہوگی، جہاں سے نہیں چاہے گا وہاں سے نہیں پیدا ہوگی۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیداوار عطا کر رہا ہے، جن کو فصلیں عطا کر رہا ہے، جن کو اللہ کریم کھیتیاں عطا کر رہا ہے، باغات لگائے ہوئے ہیں، اللہ کریم فروٹ عطا کر رہا ہے، ان کو چاہیے کہ جو ان کے اوپر لازمی ہے، ان پر جو ایک حق ہے، کاشتکار کے اوپر ایک حق ہے کہ وہ عشر ادا کرے، تو وہ اس کو مکمل طور پر کیا ہے؟ ادا کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی زمین میں اور برکت عطا فرمائے۔ دعا گوئیں ہم اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہاں زمین کا کلر جو ہے وہ دور فرمائے، اور یہاں جن کی زمینیں ہیں بنجر زمینیں ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو آباد فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن نئے لائے زندگی، کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی۔ ہم اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جہاں کاشتکار کھیت سے فالتو پودوں اور جڑی بوٹیوں کو ختم کرتے ہیں، وہیں فصل کو کھاد بھی دیتے ہیں اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے زہر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ حاجی یوسف رند کے ہمراہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں کھیت کو کھاد اور حفاظت کے لیے زہر دیا جا رہا تھا۔ وہاں کیا گفتگو ہوئی، کیا دیکھا، کیا سنا، آئیے آپ بھی دیکھیے، سنیے۔ اس وقت ہم الحمدللہ کہاں موجود ہیں یوسف بھائی؟ ہم موجود ہیں گوٹھ لاجواب کہتے ہیں، میری زمین ہے یہاں پہ۔ صحیح۔ تو ابھی یہ کھاد ڈال رہے ہیں فصلوں میں، یوریا اور ایک زہر ہوتی ہے
जो मर्ज वगैरह के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यानी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए तो वो जहर भी देना होता है साथ जी में। जी बिल्कुल। यूरिया खाद अभी इसमें डालेंगे। यूरिया डाल रहे हैं जी हाँ। सही। खाद भी दो तरह की होती है ना यूसुफ भाई, एक जैसे ये आर्टिफिशियल खाद है, यूरिया खाद है, एक नेचुरल खाद भी होती है, जैसे जानवरों का जो फॉसल जानवरों के होते हैं गोबर वगैरह, इसको भी जी, खाद जी। के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर है। वो अक्सर बागात में इस्तेमाल होता है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे जमीनें ज्यादा हैं तो इसलिए जो है ना आर्टिफिशियली इस्तेमाल होती सही है। सही। यूरिया खाद भी डलती है, डीएपी भी है, और डीएपी तो डल चुकी है शुरू में। ठीक है, शुरू में डीएपी डालते हैं, अब जो है ना ये सेकंड राउंड में ऐसे में हम यूरिया दे रहे हैं इसे। यूरिया देते हैं। नाइट्रोफॉस भी खाद होती है ना, जी जी नाइट्रोफास भी होती है। वो किस फसल को देते हैं? वो भी ज्यादा मतलब बागात में इस्तेमाल होती है मेरे ख्याल में, लेकिन यहाँ पे हम दो खाद ही इस्तेमाल करते हैं, डीएपी और यूरिया। डीएपी और यूरिया। सही। आप देखें यहाँ जो सीखने की बात है वो ये है कि फसलों को परवान चढ़ाने के लिए, इनको बीमारियों से बचाने के लिए, और जो यहाँ पर जड़ी बूटियाँ नहीं होनी चाहिए उनको निकालने के लिए एक किसान की ज़रूरत है। किसान नीड है ताकि वो क्या करे, फसल को परवान चढ़ाए, उसको खाद दे, जो उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनके सामान करे, पानी दे, जो यहाँ फजूल और फालतू खुदरो घास होती है उसको यहाँ से निकाले, तो किसान की ज़रूरत है। इसी तरह इंसान को मुर्शिद कामिल की ज़रूरत है, जो उसकी ज़ात के अंदर पाई जाने वाली खामियों को दूर करे, खराबियों को दूर करे, इसकी रूहानियत को, इसके अखलाक को, इसके किरदार को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में परवान चढ़ाए। सुभान अल्लाह। सलाम हो मेरे सुन्नत को। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम सब पर खैर के साथ तादिर कायम व दायम फरमाए। इनके शहजादे, इनके जानशीन हाजी उबैद रज़ा दामल क़दमुल कुद्सिया, अल्लाह तबारक व तआला इनको भी सेहत और सलामती अता फरमाए और इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप देखिए यहाँ माशाल्लाह ये खाद और जहर इसको जो है वो मिक्स कर रहे हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह इसको जो है वो खेत में डाला जाएगा। इसकी कोई मिकदार भी है यूसुफ भाई? जी जी मिकदार होती है बिल्कुल। ये पर एकड़ के हिसाब से देते हैं, डीएपी तो एक बोरी हम पर एकड़ के हिसाब से देते हैं। सही। लेकिन अब ये यूरिया और क्या कहते हैं जहर जो है वो फसलों की कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पर कभी टिड्डियों ने हमला किया यूसुफ भाई? नहीं, यहाँ पे टिड्डियों का कभी इस तरह नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा। जी हाँ। बाज़ इलाकों में मैंने जो है वो देखा है कि उनमें जो है ना वो टिड्डी दल जी जी ये हमला करता है, और इसका तो यानी धान का तो बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं कि कुंडा ही कर देते हैं उसका, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ही उसका कराची में भी एक दफा खा हुआ था जाते हैं। शायद। जी हाँ। तौबा। यहाँ खाद और जहर को मिक्स करने के बाद फिर इसको जो है ना ये जितनी कैपेसिटी इनकी है उसको उठा सकते हैं, वो ले जाएंगे और फिर इसको जो है वो खेतों में डालेंगे। सीखने की बात है, जिस तरह खाद फसल की पैदावार में इजाफा कर देती है, ऐसे ही अच्छे काम पर हौसला अफजाई इंसान के अंदाज और उसकी अच्छाइयों को मजीद चार चांद लगा देती है। लिहाजा अच्छे काम पर हौसला अफजाई जरूर कीजिए। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी। खाद का, इसे कहते हैं खाद का छट्टा देना, तो इसका भी एक तरीका होता है, उसके मुताबिक इसको देना होता है, और इसको आप ज्यादा अर्ली मॉर्निंग जो है वो नहीं दे सकते। यूसुफ भाई ऐसी बात है? जैसे अगर शबनम जैसे ओस पड़ी हुई है तो उसमें ये खाद देने से बिल्कुल ये बाद में मतलब देते हैं, सुबह 8, 9, 10 बजे के बाद, ताकि ओस वगैरह अगर पड़ी हुई है तो वो क्या हो जाए, वो खुश्क हो जाए। जैसे अगर ये फसल गीली होगी, जैसे पौधा है वो गीला है, तो गीले पौधे पर अगर खाद जो है वो डालेंगे तो वो बाज़ औक़ात क्या होती है, वो पौधे के ऊपर जो है वो चिपक जाती है, तो इससे वो पौधा खराब भी हो सकता है। तो इसमें मैंने एग्रीकल्चर भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा उर्दू न खे न सिंधी। हाँ हाँ सिंधी हले तो साईं, हले तो। हाँ त हे जेको तूं चयो न, हाँ त हिन जे मथां माठ आहे, बाक़ी माठ खां बाद में हे ज़हर ॾिबो आहे। छो जो माठ खां बाद ॾींदे न उहो जेको आहे न उन कीड़े वग़ैरह खे हिनखे उनखे मारींदो। माठ में हिन जो जेको आहे न हिन पननि खे रांधो साड़ींदो। जो बात मैंने उर्दू में कही है ना, वो इन्होंने सिंधी में कह के मेरी तायद की है। ऐसी बात है यूसुफ भाई जी? बिल्कुल सलमान भाई ऐसी है
क्योंकि सुबह सवेरे अगर जब शबनम के कतरे गिर जाते हैं ना, जो खाद देते हैं तो वहीं पे पत्ते पे ही रुक जाते हैं वो। खाद भी दो तरह की होती है यूसुफ भाई, एक वो होती है जो दानेदार होती है और एक वो होती है जो आटे की तरह की गालिबन होती है, पाउडर टाइप। हाँ ऐसा भी है, पाउडर भी है ना। यहाँ पाउडर साहब वो जो तवारी एड़े किस्म सा डिबो जो पोपट नहीं अच्छो वो हुजे तो वो पाउडर के क्या फरमा रहे हैं जरा उर्दू में ये बताएं। से पत्ते के ऊपर जो ये एक जीत है, एक जीत है, उसको पोपट बोलते हैं, पोपट बोलते हैं उसको। किसको बोलते हैं? ये पत्ते के ऊपर बैठता है ना कि हाँ अच्छा, किस्म का कीड़ा एक, है। हाँ कीड़ा है, कीड़ा वो क्या वो करता है? ऊपर बैठता है तो वो मर्ज उसको पैदा होता है, अच्छा, तो ये जहर से क्या होगा, वो कीड़ा मर जाएगा। कीड़ा मर जाएगा। सही। इतनी खाद कितना मतलब इसका यूँ बोलें कि ये इसका एक तजर्बा भी होना इसके लिए ज़रूरी है कि यानी पूरे खेत में खाद लग भी जाए और अच्छे तरीके से काम हो भी जाए, खाद ज़ाया भी ना हो और पूरे खेत में लग भी जाए, जी ज़रूरी है ना। जी ज़रूरी। इंडियाई सुंडी वो जेको आहे न उन्ही खे जेको आहे त हे ज़हर न वठंदो, उन्ही खे जेको आहे ॿियो ज़हर आहे, उन्ही जो नालो जेको आहे त हे जेको ॻाढ़नि में न ईंदो, ॻाढ़ा थेलियुनि में पैलेट, उहो हाणे उहो वारी सुंडी ख़तम। हाँ। ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं जरा ये आप बताएं मुराद भाई। सुर्ख एक जीत है, वो सुंडी जीत बोलते क्या हैं। होता है? हाँ ये मर्ज जो कीड़ा है, कीड़ा है, कीड़ा। वो जो पत्ते पे ऊपर बैठता है ना, वो जो पैलेट है तो वो खत्म करता है उसको। यानी एक जहर है। हाँ तो जहर वो का क्या कर नाम देता पैलेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जहर का पैलेट नाम है। ठीक है। जी हाँ, तो यानी इस फसल पर भी सुंडी भी हमला करती है। हमला करती है। तो ये सुंडी आती कहाँ से है? कुदरत का बस एक निजाम। यानी बस जानवर पैदा हो जाता है वो, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। हाँ जो है ना सुंडियाँ, जो मतलब इसको भी सुंडी लग जाती है, ठीक है आप बता रहे हैं। जैसे जी जी कपास की फसल को बड़ी सुंडी लगती है, लगती है, हर फसल को लश्करी लगती है। सुंडी है तो अमेरिकन सुंडी है, तो बड़ी तरह की सुंडियां हैं, लेकिन वो जी। कपास को लगती है वो। वो हिलते भी लगे तो सारी हाँ यहाँ भी लगे तो सारी ओ हो चाहे दाणे पोपटा जेको अच्छो वो जेको आहे दे दे माइक दे जरा माइक दे जी। हला पोपट जेको आहे त हुनखे ये कपास पोपट खे छा है साईं? पोपट छा है? कीड़ा कीड़ा कीड़े जो नाम पोपट है। पोपट अच्छो पोपट हाँ? हाँ अच्छो पोपट असां बोलते हैं अच्छा। अपना जबान में। सही सही। उहो जेको कीड़ो अच्छो आहे। अच्छू, हा अच्छू भी कीड़े का नाम है। न आहे सफ़ेद आहे अच्छो, अरे ईअं सम्झाई थो वञे। सफेद सफेद उसका नाम है। सफ़ेद रंग उसका सफ़ेद, अच्छा कलर जो है कीड़े का, कीड़े का, और पोपट उसका नाम है। पोपट उसका नाम है। सही सही। पोपट जेको वेहे थो न जंहिं फसल ते उन्ही जे मथां जेको हुनजो मतिलबु खाए थो वरी कढे थो जेको ओहो उहो कचरो हर शइ जो वेहे थो न उहो बि साड़े थो उनखे। क्या बता रहे हैं मुराद भाई? वो भी साड़े दो उनके वो जब बैठता है उसके पत्ते के ऊपर ना, हाँ ये सारी के फसल के ऊपर बैठता है ना, तो वो जो उधर पैखाना करता है ना, वो कचरा बन जाता है, वो कचरे से भी वो खत्म हो जाता है, मर्ज लग जाता है उस फसल को। अच्छा यानी ये जो जानवर है ये जो इसके फुजला वगैरह होता है उससे भी फसल खराब हो हाँ जाती है। खराब हो जाता है। तो वो कैसे, उसको कैसे मारते हैं? ये जहर मारते हैं। ये जहर मारते हैं। हाँ जहर। आप देखें ये तो इनका यहाँ इसका जो यूं बोले कि ये इलाकाई नाम जो इलाके के लोगों ने दिया हुआ है इसको, वो पोपट नाम उसको दिया हुआ है, कीड़े को पोपट। और अब वैसे किसी बंदे को भी पोपट बोलते नहीं बोलते यहाँ पर जी? नहीं नहीं बंदे को नहीं बोलते? ना, बंदे को। अच्छा चल जी, ये तो शुक्र है, अच्छी बात है, बंदे को नहीं बोलते। किसानों के साथ खेत खलियान के हवाले से गुफ्तगू खत्म हुई और फिर उन्होंने हमें वो कीड़ा दिखाया जिसे पोपट कहा जा रहा था। सीखने की एक बात है, जिस तरह कीड़ा फसल खराब कर देता है, वैसे ही बुरा अखलाक इंसान की शख्सियत और बुरी आदतें इंसान के किरदार को बर्बाद कर देते हैं। फसल को महफूज रखने के लिए उसे कीड़ों से बचाया जाता है। अपनी शख्सियत और किरदार को बचाने के लिए बुरी आदत और बुरे अखलाक से हमें खुद को बचाना होगा। ये जो वाइट वाइट निशान बना हुआ है, ये अभी देखो, ये दिखाएं। पता है ये सफेद हो जाता है, देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये भी मर्द है, ये भी ये कीड़ा है ऊपर। ऐसा जीत है कोई, निकाले निकाले। ये कीड़ा इसको खत्म करके ये अंदर कीड़ा अंदर फंसा हुआ है। कीड़ा हमें बच्चे खत्म भी निकाले 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 निकाले। जीत है, ये बैठे हैं बच्चे अंदर भी ये भी कीड़े। ना। हाँ ऐसे कि कोई जीत है।
ओहो, भाई दुआ भी करें आप जितने हमारे किसान भाई हैं इनके लिए, अल्लाह पाक इनकी फसलों से हर तरह की बीमारियां अल्लाह दूर फरमाए, इनको आफियतें राहतें अल्लाह सलामतियां अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह चाहे तो सही क्या नहीं हो सकता, बेशक हैं जी, बेशक सर, वो मालिक चाहे तो बगैर जहर डाले ही काम हो जाए, हैं जी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खेतों का विजिट करने के बाद हाजी यूसुफ रिंद के वालिद और कुछ अजीजों की कब्र पर फातिहा खानी के लिए हाजिर हुए। बलूचिस्तान में रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद हम अपनी मतलूबा जगहों से होते हुए सांगड़ आन पहुँचे ताकि आपको दिखाया जाए कि किस तरह चावल की फसल की हार्वेस्टिंग की जाती है। रास्ते में एक जगह ट्रैक्टर डिस्क हल चला रहा था, सोचा इस बारे में भी आपको कुछ बताया जाए। चुनांचे हमने रुकने का फैसला किया और फिर क्या हुआ आइए देखिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कपास की फसल काटने के बाद खेत में जो है वो डिस्क हल चलाया जाता है या रोटावेटर चलाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि खेत जो है वो जो जड़ें वगैरह होती हैं कपास की वो कट जाती हैं और खेत अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त सिंझोरों के इलाके में हैं। तो यहाँ पर ये भाई हमारे हैं ट्रैक्टर चला रहे हैं, डिस्क हल ही चलाया जा रहा है खेत में। तो ये भी थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है, नीचे उतरेंगे। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये डिस्क हल क्या करता है। ये डिस्क हल, ये देखें जड़ें, इनको जो है वो काट देता है। ये देखें ये जड़ें कट रही हैं, ठीक है, ये जड़ें जो है वो कट जाएंगी और 2-3 मरतबा ये चलेगा तो ये इसमें फर्टिलाइजर के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। अनवर भाई माशाल्लाह, कब से चला रहे हैं ट्रैक्टर की? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, सही है। अभी कितने चक्कर लगेंगे और इसके? इसके 2-3 चक्कर लगेंगे। 2-3 चक्कर और लगेंगे। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। डिस्क हल चलाने की भी एक टेक्निक है और इसको बड़े एक तरीके और सलीके के साथ जो है वो चलाया जाता है। डिस्क हल क्या करता है, ये ज़मीन को उलट पलट भी कर देता है। तो ज़मीन के उलट पलट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। माशाल्लाह परिंदे जो हैं ये यहाँ पर बगले, हाँस भी कहते हैं इनको, घूम रहे हैं और अपनी खुराक खा रहे हैं। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगह भी रहे हो करम ये, या रब जगह भी रहे हो करम ये। तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी 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 जिंदगी। सिंझोरों में चावल की फसल को संभाला जा रहा था और किस तरीके से प्रोसेस हो रहा था वहां पहुंचे, आइए देखिए। यहाँ पर धान की फसल जो है ये पक के तैयार हो चुकी है, मुंजी जो है ये यहाँ पर बन चुकी है। और पहले एक तरीका होता था कि मैनुअल तरीके से चावल की जो है वो इसकी छड़ाई की जाती, इसको बोलते थे छड़ाई। तो वो एक ड्रम होता था और वो बनाकर इसका एक यूँ बोले कि उसकी ये गठड़ी बना के उसको ड्रम के ऊपर कूटा जाता था। ड्रम होता था या चिकनी मिट्टी का एक जो है वो 4 फुट का वो एक पहाड़ टाइप बना लेते थे छोटा सा, और फिर उसको वो कूटते रहते थे। अब तो निज़ाम जो है जदीद हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये चावल की फसल को जदीद तरीके पे थ्रेशर के ज़रिए से जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम साईं, कैसे खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? कौन सी? सिंधी माण्हू आहे माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह। छा नालो आहे बाबा तव्हांजो? जी साईं। तुंहिंजो नालो छा आहे बाबा? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम माशाल्लाह। तुंहिंजो नालो बाबा? मुख्तियार अहमद। मुख्तियार अहमद माशाल्लाह। छा थो करे रहियो बाबा? हे साईं मजदूरी कयूं था, मशीन जो ड्राइवर आहियूं पाण। सही।
अच्छा, इसका भी एक तरीका है, देखें ट्रैक्टर जो है ये इसको चला रहा है, ट्रैक्टर की जो शाफ्ट है, पुली है, ये इसको घुमा रही है और मशीन जो है चल रही है, सही है। तो ये सारी धान जो कटी हुई है इसको काटते हैं, काट के कुछ दिन के लिए रखते हैं, फिर ये खुश्क हो जाती है। अब आप देखें ये बाली है और ये दाना वाली है, बाली है और दाना वाली है। कौन सा चावल है ये? चावल है सारी, चावल किस्म कौन सी है ये? वो चाइना हाइब्रिड, हाइब्रिड भी है, ठीक है जी। चले, ये सारे लेकर आते हैं और लाने के बाद फिर वहां रखते जाते हैं और बंदा वहां बैठा हुआ देखे, वो उसको अंदर प्रोसेस करता जाता है तो आगे मामला बनता जाता है। आए जरा आगे आए। अच्छा, पहले जमाने में, किसी जमाने में ये काम बैलों से भी लिया जाता था कि वो क्या करते थे, पराली को बिछा देते थे, ऊपर जो है बैल चलाते थे, तो बैल क्या करते थे कि उससे फिर चलने से भी ये चावल अलग और भूसा पराली अलग हो जाती थी। मैं भी लगाऊं? हाँ, मैं भी लगाऊं? आप क्या नाम है आपका? खैर मोहम्मद। मेहरबानी मेहरबानी। यहाँ से धान को अंदर डाल रहे हैं और ये देखें ये चावल अनप्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस अभी होगा ये मजीद। ये पराली देख रहे हैं, ये जानवरों का चारा बनेगी, जानवरों का खुश्क चारा। और साईं कैसे हैं आप? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 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 बरकत दे। दुआ करे हमारा मिशन पूरे आता है, हाथ उठा अल्लाह की बरकत में, पूरा बहुत हो रहा है, पूरे में इजाफा हो जाए, बरकत हो जाए। आमीन आमीन आमीन। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई वांज़िल अलैना रिज़्क़न वासिअन मुबारकन मिन जिहादि सित्तति तकुन लना ईदल यवलिना व आखिरना वायतम मिनका वरज़ुक़ना बिफज़लिका बिफज़लि नबिय्यिका व बिरहमतिका व बिरहमति नबिय्यिका व अंत खैरुर राज़िक़ीन बिहुर्मति सय्यिदिना मुहम्मद ताहा व यासीन नबिय्युर रहमा। आमीन या रब्बल आलमीन। खैर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब साईं खुश आए बाबा, तबीयत ठीक है साईं? मेहरबानी मेहरबानी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम तमाम की बरकत अता करे। आमीन आमीन तमाम जी रिज़्क़ में, तमाम जी फसल में आमीन। अल्लाह मदीने बरकत वालों अता फरमाए। कौन सी ज़बान बोलते हैं वैसे? ज़बान सिंधी, बलोच की, पंजाब की, उर्दू। हाँ वाह सोना वाह, आप तो 4 ज़बानें बोल लेते हैं माशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह इसमें बरकत दे, आमीन आमीन। सलामती दे। और साईं खैर है? ठीक ठाक। ये जो एक भरी होती है, जी जी, ये जो एक मतलब उठा के सर पे लाते हैं, हाँ हाँ। ये कितने किलो का होता है तकरीबन? इसमें अंदाजा तो नहीं लगाया, लेकिन 3-4 किलो होगी। ये सर पे लेकर आते हैं? हाँ सोना साईं, सर पे ये कितनी उठा के ला रहे हैं? 15-20 किलो होता है ना सोना ना, 15-20 किलो होता है ये 30-40 से नीचे नहीं है। हाँ, ऐसी होती है। अच्छा, हाँ? 25-30 किलो हो गए सारा इसके अनाज है और वो कट्ठे सारा। हाँ जी, ये 30 किलो के करीब होएगी। वो खाली वो चावल का बता रहे थे। हाँ, मैं चावल का बता रहा हूँ। निकलेगा इसमें। ये गैराबाद थी। सही है, हाँ बिल्कुल गैराबाद थी। सही तो है। हमने, कोई फसल नहीं होती थी यहाँ पे? नहीं थोड़ी बहुत ही होती थी, पर इस साल तो मदीने वाले ने रंग लगा दिए। हाँ वाह वाह। हाँ, बादशाह पीर की ये इधर देगे में उतारते हैं गौस पाक की। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ, उशर भी सही देते हैं आप? उशर भी इंशाल्लाह निकालेंगे। वाह साईं को बोला है उशर निकालेंगे। वाह इंशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको। हाँ बिल्कुल, रहमत फरमाए आप पर। आमीन। आप दुआ करना। गौस पाक के आशिक हैं आप, तो ऐसे ही बेड़ा पार है हाँ इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। हम अपनी रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ही चुके थे कि जो फसल के मालिक थे वो तशरीफ ले आए, उनके साथ भी कुछ गुफ्तगू हुई। ये काश्तकार की जिंदगी का एक पहलू था। अल्लाह
پاک ہمارے کاشتکاروں کے رزق، مال، جان اور فصلوں میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زندگی 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 کیسے نئے رنگ دکھلائے زندگی، اسباق ہر دن